रीजेनेसिस ने एआई स्कूल की स्थापना की है और एआई स्कूल की स्थापना करने के पीछे मुख्य कारण ये है कि आज की पूरी दुनिया में एआई दुनिया में काफ़ी तरह से मतलब बहुत आगे से ग्रो कर रहा है, लेकिन अगर हम इंडिया को देखें तो इंडिया का जो स्किल पेनिट्रेशन है वो काफ़ी आगे है। सो स्टैनफोर्ड का एआई इंडेक्स कहता है कि इंडिया का जो एआई स्किल टैलेंट प्रोफेशनल्स हैं वो 3 गुना जो दूसरे विश्व के एवरेज प्रोफेशनल्स हैं उनसे ज़्यादा है। और एआई की जो जॉब्स हैं वो 36% ग्रो कर रही है ईयर ऑन ईयर। सो ये एडवांटेज है। एट द सेम टाइम डिसएडवांटेजेस भी काफ़ी हैं। हमारे यहाँ कॉलेजेस में हम पेटेंट्स जो लगा रहे हैं उनको पेटेंट्स में हमें ग्रांट्स मिल नहीं रहे। रेट ऑफ ग्रांट इज़ वेरी लेस। इनफैक्ट द एआई ग्रांट रेट एआई पेटेंट ग्रांट रेट्स आर 0.37%। सो दैट इज़ अ बिग चैलेंज। एक तरफ अपॉर्चुनिटी है बट रियल काम एआई में हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो रीजनेसिस स्कूल ऑफ एआई का उद्देश्य यही है कि एआई को हम सही समझें और एआई को डोमेन के साथ में जोड़ें और एआई की स्किलिंग, एआई की एडवाइजरी, एआई की ऑटोमेशन, उन सबको एक ही हाउस के अंदर। सो स्कूल ऑफ एआई इज़ अ हाउस विच हैज़ 4 पिलर्स: पिलर ऑफ स्किलिंग, पिलर ऑफ एआई एडवाइजरी, pillar of AI consultancy and AI automation. So this is a very unique approach. CXO summit का उद्देश्य ये है कि हम जो लीडर्स हैं हमारे उनसे वो सवाल पूछें जो AI के लिए रेलेवेंट है। और ये समिट अभी शुरुआत मुंबई से हुई है, लेकिन ये आगे जाकर कोलकाता में, बेंगलोर में, कोयम्बतूर में, पुणे में, दिल्ली में भी होगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि AI इज़ फॉर ऑल। थैंक यू। नहीं, यहाँ पे आने का फ़ायदा बहुत हुआ है, क्योंकि यहाँ आने के बाद आपको बाकी सब जो कलीग्स हैं इंडस्ट्री में वो क्या सोच रहे हैं वो आपको जानकारी मिलती है। आपको आपके कंपनी के लिए क्या करना चाहिए वो जानकारी मिलती है। किससे हम पार्टनर कर सकते हैं और हमारी कंपनी एंड इंडस्ट्री एंड ऑफ कोर्स भारत के लिए और क्या कर सकते हैं, इसके हमको और बहुत सारे आइडियाज़ मिले हैं। तो यहाँ आने का फ़ायदा अपनी पूरी जानकारी और नॉलेज और इन्फॉर्मेशन हमारी खुद की बड़ी है, तो बहुत फ़ायदा हुआ है। School of AI has a big vision. The vision is really to democratize economic development, to democratize education, democratize health. So we're going to build skills. We're going to make AI available for all. Slogan of School of AI is AI for all. So India is already considered as a human capital of the world. Now we want to make India as AI capital of the world. Yeah. So do you also want to work with the government to ensure that there are certain programs which are not only at the college level or post-higher education level, but they are also embedded in our curriculum at school level, so that we have the AI going in not only for people who are graduating, but also for people who are studying in school? Yeah, we will provide all different programs from schools, for professionals, for government officials. We'll work together in partnership with non-governmental organizations, with government, corporate sector, multinational companies. Whoever requires AI, and everyone requires AI to become relevant, to become competitive, and to become successful. Yeah. So what all sectors in India do you see School of AI contributing with immediate effect? What are the sectors that you are going to create an impact? 2 major sectors in every economy are education and health. So those are 2 sectors we are going to focus, but also additional other sectors like banking and financial service sector, manufacturing sector, and agriculture and all the sectors. Yeah. So the intent of this summit is to bring together the leaders from different sectors. We have healthcare, we have pharma, we have GCC, we have BFSI, who have all come together, and they have given their opinions on how they see AI changing things for the industry. We believe that the School of AI is probably the only solution provider which not only skills, trains, but it also solutions and it deploys the solutions, like the engineering part of it. So we are probably the only service provider in India which does the whole gamut of activities. And we also are headquartered in South Africa. So this
the School of AI is not only in India but across Africa. So the intent of our management is to invest money and people in solutioning for India. Therefore, we feel that India is definitely going to benefit from this. देखिए, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं, उनका एक विज़न है कि हमें विकसित भारत 2047 पे जाना है। अब 2047 में अगर हमें विकसित भारत में जाना है तो हमें उसकी तैयारियां आज ही करनी पड़ेंगी। और क्योंकि आप देखते हैं कि तकनीकी जो है वो रोज़ाना इतना बदल रहा है, इतना इवॉल्व हो रहा है कि हर रोज़ एक नई टेक्नोलॉजी आती है। विकसित भारत की जब हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं एक ऐसे देश की जहाँ पे जो गांव हैं वो भी विकसित हैं, जहाँ पे शहर जो है वो विकसित हैं, वहाँ पे जो युवा हैं उनको नौकरियाँ मिलती हैं, और जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की हम बात करते हैं वो होता है। आज दुनिया में अगर दुनिया को बदलने का कोई मुद्दा है तो वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विकसित भारत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। वो इसलिए क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जो सबसे ज़्यादा इंजीनियर्स की पैदाइश करता है, सबसे ज़्यादा पैदा इंजीनियर यहाँ पर ही होते हैं। हमारे पास इतने सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, और क्योंकि इतने इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं तो हमारे पास वो क्षमता है कि हम डिजिटल ही नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी स्तर के ऊपर भी हम नए नए इनोवेशंस बना पाएँ, हम लोग नए नए प्रोडक्ट्स बना पाएँ, नए नए टेक्नोलॉजी को बिल्ड करें। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी को मिला के इन दोनों का मिश्रण करने के बाद हम कुछ ऐसे गेम चेंजिंग प्रोडक्ट्स मार्केट में लेके आए जिसकी वजह से हमारी जो हम भारत देश है वो पूरी दुनिया में विख्यात हो। आज हमें डोनाल्ड ट्रम्प जो हैं वो कुछ भी धमकी दे देते हैं, चाहे वो टैरिफ लगाते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उनको लगता है कि हम उनके ऊपर डिपेंडेंट हैं। आज अगर हम विकसित भारत होते हैं या आत्मनिर्भर भारत बनते हैं तो हम अपने देश की संस्कृति, अपने देश का जो युवा है, हमारे देश के जो रिसोर्सेज हैं, हम उनको अच्छे से यूज़ कर पाएंगे, अच्छे से इस्तेमाल कर पाएंगे, और शायद अपने बच्चों के लिए एक बेहतर भारत खड़ा कर पाएंगे। जैसा आप जानते हैं कि AI एक हमारी नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी है जिसको हमको हर फील्ड में अडॉप्ट करना है, और उसकी नॉलेज और उसका जो आगे बढ़ने का तरीका है वो अभी बहुत प्रोग्रेसिव नहीं है। तो जो हमें पता है कि इसकी ज़रूरत है, बट हम अभी द मोमेंटम नहीं है उसमें। तो इस समिट का जो मेन उद्देश्य है वो कि हम अपने आप को बताएं कि इस विकसित भारत में AI क्या रोल प्ले कर सकता है, स्कूल ऑफ AI उसमें क्या कंट्रीब्यूशन कर सकता है। हम एज ए यूनिट हम AI एजुकेशन में ध्यान देते हैं, हमें AI सॉल्यूशनिंग में ध्यान देते हैं, हमें AI एडवाइजरी में ध्यान देते हैं। तो इस इवेंट का मेन पर्पस है कि हम एक अवेयरनेस क्रिएट करें ब्रॉडर ऑडियंस में कि AI can solve the problem for banking, insurance, financial services, manufacturing, health care, and वो उसकी जो सॉल्व करने का तरीका क्या, उसमें चैलेंजेस क्या हैं, इन सबको हाईलाइट करना है। तो इस क्रिएटिंग अवेयरनेस एंड टेलिंग पीपल हाउ कैन वी डू इट। सो AI बहुत यूज़फुल है सोसाइटी के लिए। हमारा प्राइम मिनिस्टर है ना, मोदी जी का ड्रीम है हर सिटीजन्स जो अर्बन में हो, रूरल में हो, उसको अफोर्डेबल हेल्थ केयर चाहिए, अफोर्डेबल क्वालिटी हेल्थ केयर। ओके, एक्सेस, अफोर्डेबिलिटी, क्वालिटी, वो 3 मंत्र है। सो दैट इज़ पॉसिबल यूजिंग AI। सो जो वॉट एवर द क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर वो सिटी लोग मिलता है ना, सेम क्वालिटी even the people in the rural areas should be able to get it. So वो last mile quality बोलता है। So last mile, even the remotest area of India, they should have the access to the same quality, same affordability, and also same access. Access means access to good doctors, access to good systems, and for a very reasonable price. All those things are possible using the concept of technology. वो हमारा विजन भी है, वो जो प्राइम मिनिस्टर का विजन था, हमारा विजन भी है। टेक्नोलॉजी और ये पार्टनरशिप के साथ हम काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट के साथ काम कर रहा है, पब्लिक एंटरप्राइज काम कर रहा है, NGO के साथ काम कर रहा है टू ड्राइव दिस विजन। वेरी हैप्पी, वेरी एक्साइटेड दैट वी हैव दिस अपॉर्चुनिटी। हमने ये AI फॉर विकसित भारत समिट इसीलिए रखा है क्योंकि हमारा ये एम है कि AI जो हो रहा है अभी, सब इसके बारे में बात कर रहे हैं। AI एक अवेयरनेस लेवल पे है अभी, लेकिन उसको अडॉप्शन तक ले जाने के लिए और अडॉप्शन से और आगे ले जाने के लिए हम लोग चाहते हैं, ये समिट हमने इसीलिए रखा है, हम लोग चाहते हैं कि AI हर गली, हर कूचे, हर डिस्ट्रिक्ट, हर सिटी में पहुंचे, जिससे कि लोगों को इसके बारे में पता लगे। अभी क्या हो रहा है कि AI की
भारत जैसे देश में अवेयरनेस धीरे धीरे पहुंच रही है, सब जगह पहुंच रही है, पर हम चाहते हैं अब ये धीरे धीरे अडॉप्शन के लेवल पे जाए और आगे जाए। जब ये और आगे जाएगा तो हमारे देश को विकसित करने में हमारी बहुत मदद कर सकेगा, क्योंकि एआई का जिस तरह से बूम आया है और एआई का जिस तरह से हम लोग सब यूज़ कर सकते हैं और उसको कितनी अच्छी तरह से उसका एडवांटेज उठा सकते हैं, वो ही एक मेन चीज़ है जो हम इस विकसित भारत समिट के थ्रू कन्वे करना चाह रहे हैं। थैंक यू। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।